हेलो एस्पिरेंट्स आई वेलकम यू अगेन ऑन ऑफिशियल YouTube चैनल ऑफ VGM विषय ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਓਪਨ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਓਪਨ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਂਗੇ, MCQs ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਨ ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ एवरीवन। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Facebook, Instagram ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। देखो फेसबुक ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है जी। इस दिन जो WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिता हुआ है, उतो तुसी जेड़ा जी WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ चेंज करना है, कोई चेंज चाहते हो तुसी या तुसी कुछ और चीज़ों बारे क्वेरीज क्लियर करनी है तो तुसी 9111500017 ते कॉल करके वो क्लियर कर सकते हो। नाले WhatsApp ग्रुप के अंदर भी तुसी अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज वो जेड़े जी पूछ सकते हो। ठीक है जी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੌਣ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਐਕਟਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਨੇ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਦੀਪਤੀ ਜੀ। आई होप कि तुम इस बार मास्टर कैडर क्रैक तो करोगे बट बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नाल टॉपर्स के अंदर तुहाडा नाम होवे। बेस्ट विशेस टू यू। हाँ जी, तो आप अपनी अज की क्लास शुरू करते हैं। जेडे स्टूडेंट रेगुलर उन्होंने पता है कि आप कितों तक पहुंच जाए। जेडे स्टूडेंट पहली बार क्लास लगा रहे हैं वो पहला पिछले सेशन जरूर देख लें जी। हुण तो पहला आप जेडे टोटल 6 सेशन डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स के, ते बिल्कुल ही डीप के अंदर आप कर रहे हैं। बिल्कुल छोटा छोटा पॉइंट जो है ना हर एक पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अपने को टाइम हैगा। हर चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਸੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਸ ਰੂਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੰਮ ਆਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਣਗੇ? एग्जाम के अंदर काम आएंगे जी। तो वो रूल्स ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਸੀ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵਿਚ ਵਨ ਰੂਲ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ? ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ? ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੈਨ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵੇਟ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ 1 x square y square z square। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ 1 ਹੈ ਫਿਰ then 1 ਫਿਰ x ਹੈ then square ਹੈ, मतलब कि इस तरह ਦਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੁਅਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਹੈ then x ਹੈ then x ਸਕੁਅਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? x y y z and z x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। इस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट दसो की होएगा? दसो जी। हुण इसका डिटरमिनेंट दसो जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इसका डिटरमिनेंट की आएगा जी ते क्यों? किवें पता लगे कि इसका डिटरमिनेंट आ होएगा? रीजन भी दसना है नाल केड़ी प्रॉपर्टी इस अंदर यूज होई जिस तो तुहानू पता लगेगा कि इसका डिटरमिनेंट ए है।
तो देखो जी मैं दसदी हाँ, इसका डिटरमिनेंट अपने कोल की होएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स होएगा। हुण किवें होएगा, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया सी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हुंदा है डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मैं कैसे ना प्रॉपर्टी कितने भी यूज हो सकती है। डिटरमिनेंट ऑफ ए किस दे इक्वल हुंदा है जी, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दे बराबर हुंदा है। ठीक है जी, समझ आ गई गल, इन्नी गल पता लग गई कि इन्हां दोनों का डिटरमिनेंट समान होगा। पेपर च किवें क्वेश्चन आ सकता है, पेपर च क्वेश्चन देता उन्होंने फॉर एग्जांपल 1 1 1 2 3 4 4 9 16। हुण इसका डिटरमिनेंट कमेंट सेक्शन च कमेंट करो कितना आएगा। इसका डिटरमिनेंट कमेंट सेक्शन च कमेंट करके दसो जी कितना आएगा, कितना आएगा। देखो की है पहला x माइनस वाई, x माइनस वाई माइनस 1, देन y माइनस जेड माइनस 1, देन z माइनस x इंटू 2। तो डिटरमिनेंट कितना आ गया जी 2 आ गया। एस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, एस का डिटरमिनेंट कितना आ गया जी अपने को 2। कितना आंसर आ गया जी अपने को 2 आंसर आ गया। आप प्रॉपर्टी ने इसमें सोल्व किया। ठीक है जी, तो पेपर के अंदर कितने भी कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी तरह यूज जी है जी हो सकती है। आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਧੂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਮੇਨ ਰੱਖਣੇ ਯਾਦ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 1 1 x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब। हुण इत्थे क्या आ गया जी क्यूब आ गया, क्यूब आ गया तो उन्ना तो सेम ही रहेगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड ते जेड माइनस एक्स इनटू की हो जाएगा जी x प्लस वाई प्लस जेड। एक टर्म होर ऐड हो जाएगी, वो की होगी जी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी। आ दूजा है जी तुसी याद रखना इनू, ये तुसी याद करने हैं, याद भी हो जाएंगे कुछ नहीं सत्ता ठीक है। तीजा अपने कोल है जी 1 1 1 एक्स स्केयर एक्स क्यूब वाई स्केयर और इतने स्केयर आ गई तो क्यूब स्केयर एंड क्यूब स्केयर एंड क्यूब। इस तरह का डिटरमिनेंट आ जाए तो तुहानू याद रख तो कि केड़ा फार्मूला लगेगा जी एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स तो आना ही आना है। उस दे नाल की ऐड हो जाएगा जी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, की ऐड हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फोर्थ अपने को है 1 1 1 इत्थे जे पावर 4 आ जाए, इत्थे पावर 4 आ जाए x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 4 z रेज़ टू पावर 4 फिर की होएगा देखो इत्थे x माइनस वाई वो चीज तो रहनी है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स नाल की हो जाएगा जी नाले अपने को लग जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इसके बराबर होगा। ठीक है जी, किसके बराबर होगा माइनस एक्स वाई वाई जेड ते जेड एक्स दे बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अपने को आप स्केयर वाली देख ली क्यूब वाली देख ली। हाँ जी, जे अपने को 1 1 1 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इस तरह नाल अपने को किसी चीज का डिटरमिनेंट पता करना हो नहीं सॉरी आप बाद च करेंगे, आप बाद च दसांगे। आ डिटरमिनेंट नहीं है, आ अलग प्रॉपर्टी है, आप बाद च डिस्कस करेंगे जो आप आगे क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखते हैं अपने को जो हुए 1 1 1 एक्स वाई जेड इतने हुए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है जी, फिर भी इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा जी ए होएगा अपने को एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड ते जेड माइनस एक्स दे बराबर होएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो अपने को बनेगा जी अपने को एक्स वाई जेड फिर अपने को एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर देन है जी तुहाडे कोल एक्स वाई
नहीं, एक्स वाई नहीं, जे इत्थे एक्स है तो विदाउट एक्स वाला वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई। हाँ जी, इस तरह की चीज़ है। या फिर तुहाडे कोल जिहड़ी आपां पहलां देखी सी 1 1 1 एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किस दे बराबर सी जी? हुणे हुणे दस के हटे किस चीज़ दे बराबर सी? आ किस चीज़ दे बराबर सी अपने कोल? किस चीज़ दे बराबर सी इसकी प्रॉपर्टी? आ सी जी अपने कोल एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू की सी अपने कोल एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आई सी ना? देखो हाँ, देखो आ सेम प्रॉपर्टी सी अपने कोल। ਇਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ जी आ चीज़ भी इनक्लूड है जी। अपने कोल आ इस तरह का नंबर आ जाए तो वो भी जी सेम होगा। हाँ जी, नैक्सट प्रॉपर्टी देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है नैक्सट जी है आ तुसी याद करनी है कि है जी अपने कोल होवे एक्स वाई जेड, जेड ओ सॉरी वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई। इस तरह नाल जे अपने कोल कोई डिटरमिनेंट दिता होया है, इस तरह का दिता होया देखो वाई जेड एक्स दिता है ना। जो इस तरह का डिटरमिनेंट तुहानू देखने को मिल जाए तो उस डिटरमिनेंट किस बराबर होंदा जी? वो होंदा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz। आता ना पेपर के अंदर इस तरह का ही पूछा जाता है ज्यादातर। मोस्ट इंपोर्टेंट आ तुसी याद कर लो, आ तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, इसनू लर्न करना जरूरी है। तो आ सन जी कुछ डिटरमिनेंट ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ याद रखने हैं जिन्हां बारे ਤੁਹਾਨੂੰ नॉलेज होनी चाहिए है। आ मैं लिखता सी एक्स वाई जेड, वाई जेड जेड एक्स। आ कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है पर तो लिखी देने एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है जी, किस दे बराबर होएगा? एक्स वाई जेड एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ये दोनों आपस से बराबर होंगे ने तो इन्हां दा की फार्मूला बनता जी? एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड ते जेड माइनस एक्स। हुण आ तां तुहानूं उवें भी पता लग जाना सी क्योंकि जे आपां सब तो पहला प्रॉपर्टी कीती सी ना उस दे अंदर उस नाल कंपेयर करोगे तो आपां इहनूं एक्स वाई जेड नाल मल्टीप्लाई कीता है। ठीक है जी, एक नूं एक्स वाई जेड नाल मल्टीप्लाई किया तुहानूं दस्सिया सी जदों भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई करदे हां या फिर किसी एक नंबर नाल मल्टीप्लाई करदे हां तो वो नंबर डिटरमिनेंट नाल मल्टीप्लाई हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आ वाली प्रॉपर्टी है जिहड़ी तुसीं याद रखनी ने मेन मेन वो मैं दसदी। एक आ तुहानूं जरूर लर्न होनी चाहिए है। उस तो इलावा आ वाली तुहानूं लर्न होनी चाहिए है 2 ते 3 ए। ठीक है जी, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਤੇ 2 5 ਤੇ 1 कल कराई सो ये 6 प्रॉपर्टियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ 6 प्रॉपर्टीज। ठीक है, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ 6 ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਰੇਟ ਮੋਲਡ ਕਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ है जी, हाँ जी, पहला आप देखते हैं कोई क्वेश्चन लेके कुछ और जेडे रूल्स है वो लिख लेने डिटरमिनेंट दे। हाँ जी, पहला रूल देखो, सब तो पहला देखो जे अपने को किसी कोई डिटरमिनेंट है, फॉर एग्जांपल अपने को कोई डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आ अपने को कोई डिटरमिनेंट दिता है तो एक डिटरमिनेंट कोई होर दिता है आपां डिटरमिनेंट 1 मिल लेने उस दे अंदर एलिमेंट ने अपने को ए बी सी डी ई एफ ते जी एच आई इस तरह के एलिमेंट्स उस दे अंदर अपने को लगे। ठीक है जी, तो हुण की है कि जे ए वाले एलिमेंट जेडे है जेडे अपने को जेडा ए बी सी ए जेडे एलिमेंट है जे ए कोफैक्टर हैं, जे ए कोफैक्टर हैं अपने को इन्हां एलिमेंट्स दे। मतलब कि ए दा कोई कोफैक्टर है, बी स्मॉल बी दा है, सी स्मॉल सी दा कोफैक्टर है तां की होएगा। तो इहदे लई पहला तुहानूं कोफैक्टर दे बारे नॉलेज होनी जरूरी है। तो पहला मैं तुहानूं कोफैक्टर बारे दस दिंदी हां कि आपां कोफैक्टर किस नूं कहने आ ते
माइनर किसनू कहते हैं कोफैक्टर बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਫੈक्टर ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਫੈक्टर ਦੇਖਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਆ ਮੈਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਦਾ ਕੋਫੈक्टर ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਫੈक्टर ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 1 ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ठीक है जी 1 दी रो ते 1 दी कॉलम कैंसिल कर देंगे जेड़ा पीछे नंबर बच्चा है इस दा डिटरमिनेंट देखो कितना आएगा 9 5 दा 45 माइनस 6 8 दा 48 कितना आ गया जी माइनस दा 3 कितना आ गया जी अपने कोला माइनस 3 आ गया ठीक है जी माइनस 3 आ गया तो कोफैक्टर की हुंदा है इस दे नाल माइनस 1 दी पावर एलिमेंट दा नंबर कितने नंबर ते है 1 1 ते है माइनस 1 दी 1 प्लस 1 ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -3 ਇਸ ਦਾ ਕੋਫੈक्टर ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਕੋਫੈक्टर ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਦੀ ਰੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ 2 ਦੀ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢੋ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ ਜੀ 36 ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪਲੇਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੇ 12 ਹੈ ਤਾਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 + 2 ਇਨਟੂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਫੈक्टर ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ 36 - 42 -6 ਬਣਿਆ -1 * -6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਫੈक्टर ਕੱਢਦੇ ਆ कोफैक्टर ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਕੋਫੈक्टर ਆਫ i jth ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ i + j ਇਨਟੂ ਮਾਈਨਰ ij ਹੁਣ ਮਾਈਨਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਫੈक्टर ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ a11 a12 a13 a21 a22 a23 ठीक है जी a31 a32 a33 आ अपने को डिटरमिनेंट है ओके हुन आपा जे करना माइनर ऑफ a11 करना है तो ओ की होएगा जी s नु कैंसिल की होएगा जी a22 a23 a32 a33 ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ ਆਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ i + j ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਫੈक्टर ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਫੈक्टर ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਫੈक्टर ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जे पेपर से कई बार एग्जाम क्वेश्चन में पा देते ने which of following is determinant in form of cofactor इस तरह क्वेश्चन पा देते ने तो डिटरमिनेंट जे कोफैक्टर की फॉर्म च की है तो वो किवें कटदा है जी वो होंदा a11 इनटू कोफैक्टर ऑफ 11 ठीक है जी प्लस a12 इनटू कोफैक्टर ऑफ 12 प्लस a13 इनटू कोफैक्टर ऑफ 13 इस तरह नाल जेड़ा जी आप डिटरमिनेंट करते हैं और इस तरह नाल अपने को क्या है उस चीज का डिटरमिनेंट आ जाता है कि a11 नु उसे a11 दे कोफैक्टर नाल मल्टीप्लाई कर दो a12 नु a12 दे कोफैक्टर नाल मल्टीप्लाई कर दो a13 नु a13 दे कोफैक्टर नाल मल्टीप्लाई कर दो ते जोड़ दो तो अपने को क्या आ जाएगा अपने को उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा ठीक है जी तो उम्मीद करते हैं माइनर ते कोफैक्टर बारे तुहानू समझ आ गई होगी तो हुण आपां अपने क्वेश्चन वाल चलदे हां की कह रही है पहली ट्रिक याद रखनी है कि जे आ डिटरमिनेंट सिंपल है तो आ डिटरमिनेंट बना है जे इस दे एलिमेंट दे ए वाले कोफैक्टर ने जे इस दे ए वाला डिटरमिनेंट इस दे कोफैक्टर राही बने किस राही बने जी कोफैक्टर्स राही बनया है कोफैक्टर्स राही बने ना तो इस डिटरमिनेंट दी वैल्यू कितनी होगी डिटरमिनेंट 1 दी वैल्यू किस बराबर होगी जी पहले डिटरमिनेंट दे स्क्वायर दे बराबर होगी पहले डिटरमिनेंट दे स्क्वायर दे बराबर होगी ठीक है जी पहला जो अपन डिटरमिनेंट है उसकी स्क्वायर दे बराबर इस दी वैल्यू होगी क्वेश्चन दस दिनिया किवें दा आंदा है शायद एक बार पेपर चा क्वेश्चन आया भी होया है देखो पेपर चा क्वेश्चन आया सी एक डिटरमिनेंट दिता होया सी 1a स्क्वायर a स्क्वायर 1 a स्क्वायर 1 ते a कहता जे इस दा डिटरमिनेंट -4 है जे इस दा डिटरमिनेंट -4 है एक चीज और दसदा इथे एक फार्मूला होर भी लगदा है इथे एक आपा एक फार्मूला हुणे याद करके ना वो भी इस दे अंदर इनक्लूड हुंदा है उस वो भी तुहानू मैं दसांगी कहंदा इस दा डिटरमिनेंट जे -4 है तो फाइंड करो कि इस दा डिटरमिनेंट कहंदा डिटरमिनेंट फाइंड करो तुसी
ए क्यूब माइनस 1 0 ए माइनस ए रेज टू पावर 4, ठीक है जी, 0 ए माइनस ए रेज टू पावर 4 ए क्यूब माइनस 1 ए माइनस ए रेज टू पावर 4 ए क्यूब माइनस 1 ਤੇ 0, ठीक है जी। इस तरह ना अपन क्वेश्चन देता कहता इस दा डिटरमिनेंट कितना होगा। जे इस दा डिटरमिनेंट -4 है तो जेड़ा तुहानू हुण दिता है इस दा डिटरमिनेंट कितना होवेगा, ठीक है। इस तरह पेपर दे क्वेश्चन आया सी। हुण तुसी दिमाग लाओ, तुसी दसो कितना होएगा। देखो कितना होएगा जी, तो आपां नू पता है, देखो 1 दा कोफैक्टर की बन रहा है ए क्यूब माइनस 1, बिल्कुल सही है। ए दा कोफैक्टर की बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, बिल्कुल सही है जी। इस दा कोफैक्टर की बन रहा है ए माइनस ए दी 4, आ देखो जी सेम बन रहा है। फिर इस दा कोफैक्टर देखो कितना बन रहा है जी ए स्क्वायर माइनस 0, आ की ने जी, आ इस दे कोफैक्टर ही है ने, कोफैक्टर है ना, बिल्कुल सही गल है कि आ सारे अपने को इस दे कोफैक्टर ही है ने। तो जे ए -4 है तो इस दा डिटरमिनेंट कितना होएगा जी -4 दी स्क्वायर, सीधा सीधा आंसर आ गया 16, सीधा सीधा अपने को आंसर कितना आ गया जी 16 होएगा, कितना होएगा 16 होएगा, ठीक है जी। समझ आ गया होगा उम्मीद करती हूं। जे इस चीज दे कोफैक्टर अगले सामने दिते हुए है तो ओ उसदा की होएगा जी स्क्वायर कर देनी है, सीधा सीधा आपां उस डिटरमिनेंट दी स्क्वायर कर देनी है, ठीक है जी। की कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। दूसरा देखो हुणे मैं तुहानू दस्सिया सी आ वाला मैट्रिक्स किस तरह दा बन रहा है। जे तुहानू कोफैक्टर वाली प्रॉपर्टी ना पता होवे तो केड़ा फार्मूला लाओगे इधर। तुहानू कहते हैं इसका डिटरमिनेंट -4 है तो ए दी वैल्यू पता करो, तो की पॉसिबल है, कर सकते हो पता, कोई तरीका हैगा तुहाडे कोल इस वैल्यू नू पता करने दा। की कहता आ तुहानू डिटरमिनेंट देता ते फिर कह दवे कि तुसी जी इस दी वैल्यू पता करनी है, ए दी जे इसका डिटरमिनेंट -4 है तो तुसी एक डिटरमिनेंट देखिया सी, मैं तुहानू कहा सी मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना ए बी सी ए सी ए बी, देखिया सी ना। इस दा डिटरमिनेंट किस दे बराबर सी, किस दे बराबर सी जी -a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc दे बराबर सी आई सी। -a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc दे बराबर सी। मैं पीछे कोई गल, चलो इस दे बराबर सी। हुण देखो अपने कोल a कितना है 1 -1, b कितना है a दी क्यूब, c कितना है a दी स्क्वायर 6 बन गया प्लस 3abc 3a दी 3 बन गया। कोई डाउट है तो तक आ कितना आ गया जी -1 माइनस ए रेज टू पावर 6 प्लस 2a क्यूब इक्वल आ गया अपने को -4 दे। इथों आ गया जी अपने को ए रेज टू पावर 6 माइनस 2a क्यूब इक्वल 3 आ गया जी a3 अंदर रहेगा ए स्क्वायर माइनस 2 यानी a क्यूब माइनस 2 इक्वल 3 दे। इथों आप इनू सोल्व करने की कोशिश कर लांगे हिट या ट्राई नाल ते अपने को ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆ ਕੋਫੈਕਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरीके सोल्व करेंगे पेपर के अंदर शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स जी आप लगा के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जेडे तुहानू 6-7 मैट्रिक्स दिते वो तुसी लर्न कर लियो। इन्हां नाल रिलेटेड क्वेश्चन जेडे ना मैं डिटरमिनेंट नाल रिलेटेड मैं ग्रुप च WhatsApp ग्रुप च क्वेश्चन पा दांगी, वो तुसी सोल्व करने हैं। उन्होंने सोल्व करने तुहाडे कोल कल दा दिन है, कल तक आप सारा मैट्रिक्स कंप्लीट कर देंगे। उस दे बाद उन्हां क्वेश्चंस दी वीडियो बनावांगी जिस दे अंदर तुहानू ट्रिक्स नाल सोल्व करके दसे जाणगे ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ कि डिटरमिनेंट ऑफ 1 एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है जी एक्स बी बी ए एक्स बी ए एक्स। हुण तुहानू दिख रहा है ना कि ट्रायंगुलर बन सकता है, दिखाई दे रहा है ना। फिर कहते दूजे का डिटरमिनेंट है, कोई दूजा डिटरमिनेंट है वो है जी एक्स बी ए एक्स।
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇਤੀ del 1 ਹੋਏਗਾ ਜੀ 3 ਟਾਈਮ del 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇਤੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਫਸਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 3 ਟਾਈਮ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਸੈਕंड ਦੀ ਸਕੁਅਰ। सी ऑप्शन देती डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल है जी 3 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ 2 ते डी ऑप्शन देती ਆਪਾਂ ਨੂੰ डेरिवेटिव ऑफ 2 इक्वल 3 टाइम डेरिवेटिव ऑफ 1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ 2/2 ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, a ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ a ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, b ਨੂੰ ਮੈਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। a ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, b ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ a b c x y z p q r ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ x y z a b c ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ a ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, a ਨੂੰ 1 ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ 1 ਹੈ, b ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ 0, ਆ 1 ਤੇ x। ਇਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x2। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿ del 1 3 टाइम ऑफ दिस दी स्क्वायर नहीं है। गलती ना कर दियो कि इसनु 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, 3 टाइम ऑफ इस दी स्क्वायर ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ 4 ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਦੀ ਕਿਊਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3x2। ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3 टाइम del 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ 3 ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਆ ਤਾਂ 3x ਦੀ 4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 3x2 बराबर है 3 टाइम del 2 दे। बिल्कुल सही जी, 3 टाइम del 2 दे करांगे तो 3x2 इक्वल 3x2 आ गया। तो अपने ऑप्शन नंबर की होगी जी सी होगी। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢੋਗੇ, ठीक है, पहले डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव कटोगे तो डिफरेंशिएशन करने भी सिखावांगे कि डिटरमिनेंट की डिफरेंशिएशन किवें हुंदी है। ठीक है, तो पहला तुसी उसका डेरिवेटिव कटोगे, उस दे बाद फिर तुसी उसनू सोल्व करोगे, फिर दूजे नू सोल्व करोगे, फिर रिलेशन देखोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता उस तरीके नाल इसनू सोल्व करने का। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿਟਰਮਿਨੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ x² + x x + 1 x - 2 2x² + 3x - 1 3x 3x - 3 x² + 2x + 3 2x - 1 ਤੇ 2x - 1 ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ px - 12 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਆਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 3-4 ਮਿੰਟ ਬਰਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਰਬਾਦ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ A 24 ਹੋਏਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਜੀ -24 ਹੋਏਗੀ, ऑप्शन सी है जी 0 होएगी ते ऑप्शन डी है जी कहना 12 होएगी। देखो की होएगी दसो फिर कमेंट्स की लगदा तुहानू केड़ी वैल्यू होएगी, सोल्व करके देखो केड़े तरीके नाल सोल्व करोगे। कमेंट्स जरूर दस्सियो कि तुसी जेड़ा तरीका मैं सोल्व कीता ओही कीता या तुसी होर मेथड लाया। तो देखो शॉर्टकट दसनी है तुहानू, आपां की करांगे, मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर लेने, मैं x नू 1 ले लिया, मैं क्या x ले लेने आपां 1। ठीक है, मैं x नू 1 लिया तो मेरे को की बनेगा डिटरमिनेंट, देखो आ कितना बन गया जी 2 2 - 1 आ बन गया जी 5 तो एक गया 4 आ बन गया जी 3 आ बन गया 0 आ बन गया 3 ते 3 6। ठीक है, आ इत्थे आ गया 1, इत्थे भी आ गया 1। आ किस दे बराबर दिता है, x की जगह की पुट किया 1
1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ p ਮਾਈਨਸ 12। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਇੱਥੇ 0 ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 0 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ p 0 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ p ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ p ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ p ਮਾਈਨਸ 12 ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, आएगा जी 3 2 जा 6 माइनस आएगा जी 4 2 जा 8 सॉरी माइनस 8 माइनस 1 है तो आएगा 4 माइनस 18 तो माइनस 14 प्लस 14 हो गया। ठीक है जी, आ बन गया 12। p माइनस 12 दे बराबर है तो p कितना आ गया जी 24 आ गया। सिर्फ इन्ने टाइम का क्वेश्चन सी। p दी वैल्यू कितनी आ गई जी 24 आ गई। p कितना आ गया 24। हाँ जी, एक क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ਤੁਸੀਂ करके देखना है, दिमाग लाना है किवें करना है। जे ABC GP ਦੇ ਅੰਦਰ ABC आर इन GP ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ABC GP ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ABC आर इन GP then find the value of determinant। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰੋ। AB AX plus B ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ BC BX plus C ਤੇ CD DX नहीं AX plus B ते BX plus C दोबारा लिख देने, इरेज करके दोबारा लिख देने की है कि ABC आर इन GP ABC आर इन GP कहना ABC जेडी है जी GP च है तो डिटरमिनेंट दी वैल्यू पता करो। डिटरमिनेंट केड़ा AB AX plus B है। ठीक है, BC BX plus C इत्थे जी AX plus B BX plus C ते 0। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜੇ ABC GP ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ A ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆਏਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਜੀ 1 ਆਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ C ਹੈ ਜੀ -2 ਆਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ D ਹੈ ਜੀ -1 ਆਏਗਾ। करके जरूर देखना क्वेश्चन, कल के सेशन से नहीं तो फिर मैं तो कराना ही है, पर तुसी इस नूं जरूर ट्राई करना है। ठीक है जी, इस नूं ट्राई करना है ते किन्ने टाइम तुसीं सोल्व करो आ भी देखियो। ठीक है, ਇਹਦੇ अंदर भी सब्सटीट्यूशन लगेगा, जीपी वाला सब्सटीट्यूशन लगेगा। तुसी सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओगे तो सिर्फ 2 स्टेप के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। तो आ संजय डिटरमिनेंट दे कुछ क्वेश्चन, बाकी ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ग्रुप ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ क्वेश्चन ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ 100 क्वेश्चन ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਰਾਥਨ ਲਗਾ ਕੇ। हाँ जी, इस तो बाद मैट्रिक्स के अंदर जो अपने अंदर कोल टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे जी एडजॉइंट रह गया। हुण आपां सॉरी अज एडजॉइंट बारे पढ़ांगे, फिर इनवर्स है, इनवर्स बारे भी डिस्कस करांगे। ठीक है, उस दे बाद आपां क्रैमर रूल दे बारे पढ़ना है ते करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये 3-4 चीज़ां जो अपनी पईयां ने जिन्हां बारे आपां डिस्कस करना है ते एग्जाम च क्वेश्चन देना दे अंदर वो आ जांदा है। ठीक है, तो पहला आपां देखदे हां जी एडजॉइंट की हुंदा है। एडजॉइंट की होंदा है ते लास्ट दे अंदर कुछ होर डिटरमिनेंट दे रूल है, कुछ होर जेडी चीज़ां याद रखने वाली है वो भी तुहानूं जानदे हो जरूर दस के जावांगे। डिटरमिनेंट दियां कुछ प्रॉपर्टीज जिहड़ियां तुहानूं याद होणियां चाहिदियां ने। ठीक है जी, तो हुण पहला आपां देखदे हां व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हां जी, एडजॉइंट पहला एडजॉइंट देखदे हां, फिर तुहानूं मैट्रिक्स दा इनवर्स करना भी दसदे हां। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की हुंदा है जी। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स किहनूं कहंदे हां, देखो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसे मैट्रिक्स दे कोफैक्टर तो इसे मैट्रिक्स दे कोफैक्टर तो जेड़ा मैट्रिक्स बनेगा, इस मैट्रिक्स दे कोफैक्टर तो जेड़ा मैट्रिक्स बनेगा ना उस नूं आपां कहांगे एडजॉइंट ऑफ ए। की कहांगे जी एडजॉइंट ऑफ ए कहांगे कि कोई भी अपने कोल मैट्रिक्स है उस दे कोफैक्टर्स तो जेड़ा आपां मैट्रिक्स बनावांगे उस नूं की कहंदे हां जी एडजॉइंट ऑफ ए कहंदे हां कि ओ साडे कोल उस मैट्रिक्स दी एडजॉइंट है। किस तो बनाना है, कोफैक्टर तो मिला के बनाना है। किसी भी मैट्रिक्स दे कोफैक्टर तो जेड़ा आपां मैट्रिक्स बनांदे हां उस नूं की कहंदे हां एडजॉइंट ऑफ ए कहंदे हां। ठीक है जी, हुण आपां देखदे हां एडजॉइंट ऑफ ए कट के देखते हैं। ठीक है, हां जी, आपने को एक मैट्रिक्स ले लिया, सॉरी ट्रांसपोज भी करना, मैं ट्रांसपोज बोलना भूल गई। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय ए स्क्वायर कोफैक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सॉरी ए मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल ना तो जल्दी समझ आ जाएगा।
अपने को फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 2 3 3 4 आ मैट्रिक्स है तो इसकी एडजॉइंट करनी है ਤੁਹਾਨੂੰ कहता इसकी एडजॉइंट ऑफ ए कढो एडजॉइंट ऑफ ए की होएगी जी साडे कोल एडजॉइंट होएगी इसके कोफैक्टर करने हुन इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है ठीक है मैं हुन सीधा ही लिख दिया क्योंकि प्रैक्टिस है पहले 1 का कोफैक्टर क्या आएगा जी 12 - 6 कितना आएगा जी 6 2 का कोफैक्टर कितना आएगा जी 8 - 6 2 ते इत्थे की लगना है माइनस मैं तुहानू दस्सिया सी ना याद रख लियो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आ तुहानू मैं समझाता सी की रीजन से इसके पीछे ते माइनस सी हाँ जी ते फिर 3 का कितना आएगा जी 6 - 9 -3 फिर 2 का देखो जी कितना आएगा 8 - 9 -1 ते माइनस माइनस प्लस 3 का क्या आएगा जी 4 - 9 -5 देन 2 का इसका क्या आएगा जी 3 - 6 -4 ओ सॉरी -3 माइनस माइनस प्लस देन 3 का क्या आएगा जी 2 2 जा 4 - 9 -5 आएगा S3 का कितना आएगा जी 2 - 6 -4 आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो इस दा की बनेगा जी 3 - 4 -1 बनेगा आ चीज तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕੋਫ ਐਡਜॉइंट ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਇਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 6 - 2 -3 1 - 5 3 -5 4 ਤੇ -1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਡਜॉइंट ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਐਡਜॉइंट ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ठीक है जी आ मैथड अपने को किसी भी मैट्रिक्स की एडजॉइंट कढण दा कि कोई भी मैट्रिक्स दिता है उसकी एडजॉइंट पता करनी है तो उसका मैथड अपने को है हुण एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज भी होनी कुछ एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज भी होनी वो भी आप देख लेंगे कि एडजॉइंट की साडे कोल की प्रॉपर्टीज ने ठीक है जी एडजॉइंट की अपने कोल केड़ी प्रॉपर्टीज ने वो डिस्कस कर लेने हाँ जी सब तो पहली गल तुसी याद रखनी है सब तो पहली गल जदों भी आप एडजॉइंट करनी है एडजॉइंट नू डिनोट करने का तरीका तुहानू मैं दस दिता सी ठीक है एडजॉइंट नू डिनोट करने का तरीका आप देख लिया सी पर एडजॉइंट नू डिनोट किवें करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह नाल इसनू आपां डिनोट करते हैं ठीक है जी हुण देखो तुहानू मैं क्या किसी ए मैट्रिक्स से एडजॉइंट कढो ओके जे मैं कहता एडजॉइंट ऑफ ए कढनी है एडजॉइंट ऑफ ए जे आप सोल्व करनी होए तो किस दे बराबर होएगी एडजॉइंट ऑफ ए कढनी है तो किस दे बराबर होएगी जी वो होएगी ए रेस्ट पावर n-2 ए रेस्ट पावर n-2 इनटू ए इस दे बराबर होएगी जी ठीक है जे 2 बार आ गई तब n-2 जे इसे जगह हो जाए 3 बार सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए जेडी अपने को किस दे बराबर होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए दी a रेज़ टू पावर n-2 इनटू a पहली प्रॉपर्टी तो है दूसरी प्रॉपर्टी अपने को है दूसरी प्रॉपर्टी की है देखो फॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ कह दें डिटरमिनेंट ऑफ ਹੁਣ डिटरमिनेंट ਦੇ ਅੰਦਰ कह दें एडजॉइंट ऑफ ए ਦਾ डिटरमिनेंट कह दें एडजॉइंट ऑफ ए ਦਾ डिटरमिनेंट किस ਦੇ बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 ਦੀ स्केयर n-1 ਦੀ स्केयर कितनी होगी जी n-1 ਦੀ स्केयर ए दे डिटरमिनेंट दी पावर n-1 दी स्केयर होएगी की होएगी जी n-1 दी स्केयर ते n की है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n इथे की है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ठीक है जी जे आई चीज अपन कह दें एडजॉइंट ऑफ ए तो वो किस दे बराबर होएगी जी डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 दी क्यू जिन्नी बार एडजॉइंट है उन्नी पावर बढ़ाई जानी जी 2 बार है तो स्केयर 3 बार है तो क्यू अप टू सोन n टर्म्स तक एवें ही चलता रहेगा जो डिटरमिनेंट के बारे पूछा जाए किस दे बारे पूछा जाए जी जो डिटरमिनेंट के बारे पूछा जाए तो अपने को फार्मूला यूज होगा ठीक है जो भी डिटरमिनेंट के बारे पूछा जाए तो अपने को वाला फार्मूला यूज होगा
हुण तुहानूं एक क्वेश्चन दिंदी हां, देखो मैं क्या ए कोई मैट्रिक्स है सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए जिहड़ा जी तुहाडे कोल 4 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए तुहानूं 4 दिता होया है, तो तुसीं पता करो ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। आ पता करनी है तो कितनी होगी जी, दसो किस दे बराबर होगी, कमेंट सेक्शन से कमेंट करो जे देखने तुहानूं पता लग्या कि नहीं लग्या। हुण देखो की है डिटरमिनेंट दिता है ए दा 4, आपां नूं पुछया, आपां नूं पता है एडजॉइंट ऑफ ए, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ। ਆ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ n-2। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ 3/3 ਦਾ। ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ n-2 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3-2 ਇਨਟੂ ਕੀ ਆਏਗਾ a, ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 4a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, 4a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, किस चीज के बराबर होएगा, 4a दे बराबर होएगा। समझ आ गया होगा, ये दोनों प्रॉपर्टीज बारे तो समझ आ गई होगी, उम्मीद करती हूं। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है जो डिटरमिनेंट ते एडजॉइंट दी अज दी प्रॉपर्टी नाल रिलेटेड है। कमेंट सेक्शन से कमेंट करके दस्सियो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 दा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 दा है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 9 दिता है, डिटरमिनेंट ऑफ तो 9 दिता है, तो वैल्यू पता करो डिटरमिनेंट ऑफ 2 टाइम एडजॉइंट ऑफ ए दा, इस दी वैल्यू पता करनी है। तुसी इस चीज दी वैल्यू पता करनी है, तो किवें करोगे, चलो मैं दस ही दिनी हां। तुहानूं पता है सब तो पहला तो जे अपने को डिटरमिनेंट के अंदर कोई स्केलर मल्टीपल होया तो वह बाहर आके की हो जाता है, उसकी पावर ऑर्डर की पावर, जिन्ने ऑर्डर दा उन्नी उसकी पावर कर देंगे। दसिया सी ना मैं पहले दिन तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी दसी सी। तो आ बन गया जी 2 दी क्यूब इनटू की बनेगा जी, आपां नूं पता है एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किस दे बराबर हुंदा है, ए दी पावर n-1, n-1 ते जिन्ने टाइम एडजॉइंट है उन्ने टाइम, तो क्या आएगा जी ए दी पावर n-1, ठीक है। तो एक बार है तो ए दी पावर 1 लिखने की लोड़ ही नहीं। आ की बन गया जी 2⁻3, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 9, ते n कितना है जी, ऑर्डर कितना है 3, 3 - 1 कितना हो गया 2, आ गया जी 2 क्यूब इंटू 9 दी स्क्वायर, ते आ गया जी अपने को 8 इंटू 81, ते आ गया जी 648। इस तरह का क्वेश्चन पेपर च आ सकता है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਨਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਦੈਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋ ਜਾਂ ਕੋਲਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आ यूज हुई, दूजी अपने को जी आप अज हमने प्रॉपर्टी की वो यूज हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया, जे ना समझ आया तो कमेंट सेक्शन से कमेंट कर दियो, तुहानू दोबारा तो समझा दिता जाएगा, ठीक है जी। तो आ सी जी एडजॉइंट, अपने को मैट्रिक्स दी एडजॉइंट कढण दा फॉर्मूला आ सी। हाँ जी, हुण एडजॉइंट दी कुछ होर प्रॉपर्टीज ने जिहड़ी कि इनवर्स नाल रिलेटेड ने या डिटरमिनेंट नाल भी रिलेटेड ने, वो भी आपां जी डिस्कस करनियां ने, नाले इनवर्स बारे भी जिहड़ा आपां डिस्कस करांगे कि इनवर्स की हुंदा है ते एडजॉइंट। देखो दोबारा तो दस देने, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किस दे इक्वल हुंदा है जी, किस दे इक्वल हुंदा है, हुणे हुणे दस के हटियां। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किस दे बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए दी पावर n-1, ठीक है। दूजा एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी किस दे बराबर होती है जी, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है जी। तीसरा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज किस दे बराबर होती है जी, एडजॉइंट ऑफ ए दी ट्रांसपोज दी। फोर्थ है जिहड़ी उन्हें दसी सी एडजॉइंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए बारे जिस तरह दसी सी ओ की सी जी डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस्ट पावर n माइनस 2 इंटू ए के बराबर। ये कुछ प्रॉपर्टीज ने एडजॉइंट बारे ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਡਜॉइंट ਦੀ ਤੇ ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो ना अपने फ्रेंड्स नाल तुहाडे देखो तुहाडे नोन से तो काफ़ी फ्रेंड्स को उन्हां नाल भी शेयर करो ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सकन ते सानू भी एप्रीशिएशन मिले ते असीं तुहाडे लिए वधिया तो वधिया सैशन लेके आ सके। जे तुहाडी स्ट्रेंथ वधेगी तो हो सकदा आपां एक हर रोज़ जिहड़ी सिलेबस ते थ्योरी दी क्लास एक जिहड़ी MCQ दी क्लास भी रख सकते हैं। अज दे लिए इन्ना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम ऑल दी